Hello, very good morning to all of you. How are you doing? So this particular session is about how you can utilize your time after C final exams, right? This is obviously just 1 week after your exams, and I'm sure that you people have been enjoying this time a lot. There are a lot of things that you will be having in front of you. You may be thinking about a lot of options. What is the agenda for today for next 75 minutes, right? आप लोगों को बहुत ही important points जो हैं जो आप अभी इस टाइम को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो उसके बारे में समझना है। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि ये डेफिनेटली टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके पोस्ट क्वालिफिकेशन प्लान्स के लिए, राइट? तो जितने भी क्वेश्चंस हो उनको फ्रैंकली आप लोग पूछें, और जिस भी पॉइंट पे अगर ऐसा लगता है कि यू हैव एनी कंफ्यूजन एनी डाउट, तो डू स्टॉप मी एट दैट मोमेंट इटसेल्फ एंड देन वी विल cover up those points, right? So this is you can say that it is kind of career webinar, right? Although it is how you should utilize your time after exams, but mostly it is in the context of career, right? Career related stuff. तो पूरा डिस्कशन हमारा कहीं ना कहीं करियर रिलेटेड रहेगा, जॉब ओरिएंटेड रहेगा डिस्कशन, बिकॉज अल्टीमेटली आई बिलीव दैट यू पीपल आर लुकिंग फॉर जॉब इन फ्यूचर, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग आगे का डिस्कशन रखेंगे. सो बिफोर आई गो before we start the session in real terms, let me introduce myself. My name is Gunjan Shrimal, and I'm a chartered accountant. I cleared my CA in 2007. So it has been a long time since 2007. This is 2023. So in all these 16 years, uh, there has been some fantastic experiences that I have got. And these experiences are the form of industry experience. First 12 years I have spent in the industry. I joined various companies post qualification. I started my career with Idea Cellular. I got it in the campus, and this job I have got through campus, and there are multiple opportunities that were there in front of me. So first 10 years was in industry, and then I started my institute, that is CampRep. For last 5 years, we are trained more than 3,000 students for campus trainings, right? So these 5 years has given us multiple experiences, and those experiences I am going to share with you, right? We are training the students from 2017. So from 2017 to 2023, right? It has been 6 years, almost 12 campus we have seen. And in these 12 campus, we have seen multiple students making multiple mistakes. Multiple students have taken some good decisions. What are the things that you need to do at this moment? So all these experiences I'm going to share with all of you, right? But before I proceed further, yes, I'm properly audible and visible. Just wanted to confirm that. You can unmute yourself and tell me. Yes. Okay, perfect, perfect. You can read this stuff right on the slides, because the next slides uh, you need to little bit have a closer look, right? Okay, perfect. So primarily I was talking about the experiences that I've got. So I worked for Idea Cellular, I worked for Bank of America. I went abroad for almost 2 years. I worked in Malaysia. And then I worked as a CFO for Apollo Group, one of the subsidiary of the Apollo hospitals. All these years, we have seen that a growth in the corporate side, how a management trainee grows. I started as a management trainee, then got my promotion as assistant manager, then manager, then senior manager, DGM, then CFO.
right? So this is the journey, and in this journey there are a lot of realizations that happens. And I personally believe that if you have a right start at the beginning, then the journey becomes very smooth. And that is what will be uh, covering today. At the same time, all these 5 years, we have seen different kind of students who have ranging from multiple attempts, those who have got a first attempt, those who have got ranks, and those who have got multiple attempts. Multiple attempts, like in the last batch, we have one student who's got 16 attempts. So at the same time, people are having a background, different kind of articleship experience. Those articleship experience are again ranging from audit, taxation. Some have got finance. Some have worked for small companies. Some have got for large companies. So there has been multiple experiences that we have seen. And then we have seen people who are from the Hindi medium background and those who are from English medium background. So all kind of students we have seen, and then we have developed the program accordingly. Today's coverage is obviously about CA final exams, what you can do. There are some misconceptions and some reality check, right? And second is we'll be doing a quiz that is kind of a campus quiz, और उस quiz में definitely आपको एक clarity आएगी that what kind of questions that are asked in the campus, right? So I would again suggest all of you that first of all, congratulations that you people have taken initiative of thinking beyond results, which is a fantastic thing, because most of the students are right now thinking just about results, not doing anything. तो एक अच्छी बात है कि आप लोग रिजल्ट्स के बियॉन्ड भी सोच रहे हो, एंड यू शुड डेफिनेटली गेट बेनिफिटेड, राइट? सो मैं आपको सेशन के आखिरी में विल बी गिविंग यू सम गिफ्ट्स, right? And those gifts are obviously because you people have taken that initiative. ठीक है, तो हम लोग पहले आगे चलते हैं और उसके बाद वन बाय वन आज ये 3 जो एजेंडा है हमारे, इन 3 एजेंडा को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से दैट यू शुड speak up, right, during the session wherever you need to have any, if you have any questions. So basically there are multiple options right in front of you. You must be having all these options like job, Index certification, Excel courses, internship, right? Communication skills build up, campus preparations, skill courses, general awareness, right? तो ये इतने options हैं. अगर आप लोगों ने इसमें से कुछ सोचा हो, अगर okay, and you can write it in the chat box that you are basically thinking about this one, okay? So we can speak a little bit about it. Otherwise, I will start giving my point of view. मेरा क्या point of view इन सब चीजों के ऊपर. अगर किसी के माइंड में कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो तो उससे स्टार्ट करते हैं. ऑलराइट, तो चलिए मैं पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग इन चीजों पर आते हैं. सो एज यू सी देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, राइट? बहुत सारे ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने, और इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए. सो प्राइमरीली व्हाट आई बिलीव इज, आप सभी लोग जॉब एक्सपेक्ट कर रहे हो. आफ्टर द रिजल्ट्स यू विल बी गोइंग आउट फॉर जॉब. When you're going out for job, the first thing you should do a reverse planning rather than forward planning. Reverse planning means like assume that you got qualified now, right? 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा, आप क्वालिफाई हो गए. अब क्वालिफिकेशन के बाद आप पहली चीज क्या करोगे? आप ये सोचोगे कि बेसिकली कौन सी कंपनीज में अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, और किस टाइप का जॉब लेना है. तो मेरा सजेशन ये है कि आप इसी प्लानिंग से आज चलो, assuming that this is the kind of scenario that is going to happen, और इसको हम फिर रिवर्स मोड में प्लान आउट करते हैं. ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम अभी जॉब ले लेते हैं, राइट? जॉब अगर आप लेते हो तो यू विल नॉट बी एबल टू डू इट फॉर मोर देन 1.5 months, right? So job is not a desirable scenario as per me. What I can suggest you,
because first thing is it is very difficult to get a job. People are looking for surety from your side कि post qualification also you will continue. तो जॉब को लेना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. फिर 1.5 मंथ के बाद जब आप क्वालिफाई हो जाओगे देन यू विल लुक फॉर चेंज. तब आपका माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि यहीं पे कंटिन्यू करें या फिर हम लोग कोई दूसरा ऑप्शन लें. तो इसलिए वो एक टिपिकल सिनेरियो है जिसमें आपका टाइम ज्यादा इन्वेस्ट हो जाएगा एंड यू विल नॉट गेट मच आउट ऑफ इट, राइट. लेकिन आप क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले सकते हो उसको आपको समझना जरूरी है. ठीक है. मैं उसके बारे में आऊंगा, बात करूंगा. बट जॉब के बारे में दिस इज माय वेरी क्लियर ओपिनियन. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कम्स टू मी एंड देन दे आस्क अस कि आप कहीं पे हमारा जॉब प्लेस करवा दूं. बट अगेन आई एम अगेन सेइंग कि दिस इज अ सिनेरियो वेयर यू विल नॉट गेट मच. ठीक है. आप किसी फर्म में एसोसिएट होते हो, उस फर्म में अगर आपको कोई एक्सपीरियंस मिलता है दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. लेकिन प्रॉपर प्रॉपर जिसको जॉब बोलते हैं, राइट, किसी कंपनी में, वो 1.5 मंथ के लिए मिलना बहुत डिफिकल्ट है. तो वहां पर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करिए. दिस इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव. सर्टिफिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो सर्टिफिकेशंस में पूरी प्लानिंग आपकी इस हिसाब से रहे कि हमको किस फील्ड में जॉब चाहिए, कौन सी फील्ड में आप जाने वाले हो, उससे रिलेटेड अगर कोई सर्टिफिकेशन आप प्लान करते हो तो वो ठीक है. दूसरी बात ये है कि अगर आप जो सर्टिफिकेशन ले रहे हो इज इट मोर देन दी वेटेज ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी डिग्री, राइट. जैसे कई लोग बोलते हैं कि हम लोग कोई जीएसटी का सर्टिफिकेशन कर लेते हैं. क्या आपको लगता है वो जीएसटी का सर्टिफिकेशन सीए की डिग्री से ज्यादा वेटेज रखता है? ऑब्वियसली नॉट, राइट. तो इसलिए उस सर्टिफिकेशन को भी करके कोई फायदा नहीं. कोई नई स्किल सेट अगर सीखना है तो जरूर करो. फॉर एग्जाम्पल एमएस एक्सेल, एडवांस्ड एक्सेल, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी. ठीक है. तो ये एक प्रैक्टिकल स्किल है जिसको आप प्लान आउट कर सकते हैं. ठीक है. सो वन इज दैट एंड सेकंड इज अगेन थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर करियर, कैंपस एंड कैंपस प्रिपरेशंस, राइट. तो दिस इज व्हाट माय सजेशन इज. फिर भी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो तो आई एम ओपन टू आंसर दैट, राइट. सो I personally believe that these are the things that you need to do. We are doing that as well on our WhatsApp group. Basically, we are posting job requirements. We are posting informative videos. तो आपको बेसिकली पूरा का पूरा फोकस जो है वो अभी अपने जॉब के ऊपर रखना है. ठीक है. अभी मेरे ख्याल से आप लोग सेलिब्रेशन के मूड में हो. एक्सेल के अलावा और क्या कोर्सेस किए जा सकते हैं? एक्सेल के अलावा देखो, अगर आपके माइंड में है कि हम आपके माइंड में अगर ये चल रहा है कि हमको फाइनेंस में जाना है, राइट, तो फाइनेंस में जाना है तो आप कहीं ना कहीं एमएस एक्सेल का कोर्स के अलावा फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स भी कर सकते हो. ठीक है. वो भी एक थोड़ा सा बेटर कोर्स होता है. ठीक है. तो सेलिब्रेशन आपका 2 दिन चलेगा. ठीक है. आप लोग अभी जो एग्जाम के बाद रिलैक्सेशन ले रहे हो, और रिलैक्सेशन के बाद 2 दिन के बाद अगेन ये चीज आएंगी क्योंकि अभी बहुत टाइम बाकी है रिजल्ट्स के अंदर. तो अगर इतना टाइम बाकी है तो डेफिनेटली इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू शुड यूटिलाइज योर टाइम इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर. ठीक है. तो मैं आपको कुछ स्टोरीज सुनाता हूँ पहले. स्टूडेंट्स ने क्या चीजें करी हैं और उसका उनको क्या रिटर्न मिला है, राइट. जैसे कि अभी आपने अभी आपका क्वेश्चन था कि हम लोग फाइने एक्सेल के अलावा और क्या कर सकते हैं. मैंने आपको एक आंसर दिया, फाइनेंशियल मॉडलिंग, राइट. ओके. सो आपके क्वेश्चन पे मैं आता हूँ, राइट. पहले मैं आपको कुछ 2-3 स्टोरीज बता देता हूँ, पास्ट की स्टोरीज, सो दैट things will be very easier for you. See, the first story is about the course on financial modeling. Someone has done course on financial modeling. Now, why somebody does it? Because they look for job in finance field, right? लोग बोलते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ज्वाइन करना है, हमें फाइनेंस रिलेटेड प्रोफाइल्स चाहिए, इसलिए वो फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स करते हैं. Now, the big question is how many companies are there who are hiring fresher chartered accountants for investment banking roles?
Can you tell me, out of 100 companies which are participating in campus, how many companies are coming for investment banking roles? You need to understand that this is a reality check also. मतलब यहाँ पर मैं केवल बहुत पॉजिटिव बातें और कोई बहुत अच्छी बातें नहीं करना चाह रहा हूँ. आई एम जस्ट कमिंग टू टेल यू द रियलिटी, बिकॉज हम लोग जब स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं, सो इट इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी शुड नॉट गिव एनी फॉल्स क्लेम्स. ठीक है. तो हाउ मेनी कंपनीज पार्टिसिपेट? सो जेपी मॉर्गन, यूबीएस, मॉर्गन स्टैनली एंड एमएनसीज. ठीक है. अभी आप लोगों को अगेन इस चीज के डीप में जाना रहेगा, दैट व्हेन जेपी मॉर्गन कम्स और यूबीएस कम्स और क्रेडिट स्विस कम्स और sometimes foreign banks comes, like Bank of America also has participated. For what role they have come for? This is a very important question. What role, right? Did they come for investment bank, or did they come for financial reporting or regulatory compliances? So the answer is that all these companies, JP Morgan, UBS, they have come for financial reporting rules or controllership rules or some back-end work, right, which is nothing to with investment banking. So why I'm saying this particular point? 90% of students believe that if we will enhance our skills, we will get a job in IB. अगर हम हमारे स्किल्स के ऊपर काम कर लेंगे तो हमको आईबी पे की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, राइट? सो दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल. आपको स्किल्स के ऊपर तो काम करना ही है, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू हैव द राइट कनेक्ट. विदाउट कनेक्ट यू विल नॉट गेट एनी जॉब इन आईबी. ठीक है. इस बात को आप बहुत अच्छे से समझो कि विदाउट कनेक्ट यू विल नॉट गेट. वी आर इनटू दिस इंडस्ट्री फॉर लास्ट 6 years. वी हैव मल्टीपल कनेक्ट इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ग्रुप्स. बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी आईबी में काम कर. When I was in job, I had lot of friends who are into investment bank. Still, when the students ask us that please share our resume, right? There are very few openings. And when there are very few openings, obviously the competition is very high. Every year there are 13,000 chartered accountants who clears final. So 13,000 students में से करीब 10,000 opt for campus, off campus jobs. और उन 10,000 में से everyone likes to build their career in IB. ये बात तो आई बिलीव आप लोग मानते होंगे, समझते होंगे. यस. तो इसलिए मेरा आपको इस सजेशन है कि आप लोग केवल और केवल आईबी के लिए ट्राई ना करो. आईबी के साथ में सारे ऑप्शंस ओपन रखो, राइट? यू शुड हैव अ प्लान ए एंड यू शुड हैव अ प्लान बी. Again, I am telling you this part, which is very important to understand, because मार्केट में चीजें बहुत चलती है और फ्रेशर्स क्योंकि इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो दे बिलीव वॉट एवर इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ देम. अगर मैं आज आपको बोलता हूँ कि ओके प्रिपेयर फॉर इन्वेस्टमेंट बैंक, प्रिपेयर फॉर मैनेजमेंट कंसल्टिंग, यू विल 100% बिलीव मी एंड यू विल इन्वेस्ट योर टाइम ऑन दैट. But what happens is, if after 2 months, when the list of the companies comes in front of you and there is no IB firm in that, obviously you will feel cheated कि आपने बताया तो हमें कि like IB की तैयारी करो, लेकिन companies तो वैसी आई. तो you need to make your mind right. This session is specifically to help you understand that how you need to proceed about various profiles. So ये जो स्टोरी है जिसकी मैं बता रहा हूँ आपको, उन्होंने यही करा, पूरा फोकस आईबी पे रखा. ही क्लियर्ड हिज सीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट. तो उनकी एक एक्सपेक्टेशन भी थी कि मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर्ड है, तो मुझे तो कोर आईबी मिलना ही चाहिए. उन्होंने टाइम इन्वेस्ट किया, बहुत सारे फाइनेंशियल मॉडल्स बनाए, फाइनेंशियल मॉडलिंग की अंडरस्टैंडिंग ली. उसके बाद जब कैंपस आया तो कैंपस में उनको एक भी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं है, क्योंकि कोई कंपनी आती ही नहीं है कोर आईबी के लिए. ठीक है. उनको लेकिन शॉर्ट लिस्टिंग दूसरी कंपनी से आई, लाइक विप्रो से आई शॉर्ट लिस्टिंग, लाइक रिलायंस से आई, बीपीसीएल से आई. तो बेसिकली
उन्होंने उन कंपनीज के लिए अप्लाई करा, ओके, और उन कंपनीज का जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो कंप्लीटली डिफरेंट था। जैसे कि विप्रो में दे लुक फॉर रिटन टेस्ट, राइट, उस रिटन टेस्ट में दे लुक फॉर मैथमेटिक्स, दे लुक फॉर लॉजिकल रीजनिंग। सो पॉइंट ये है कि आपको अपने आप को हर तरह से तैयार करना, किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के लिए अपने आप को तैयार मत करिएगा। कई बार लोग बोलते हैं कि ये डिसाइड करो आप कि हमको किस फील्ड में जाना है। ये बिल्कुल थियोरेटिकल बात है, आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। मैं प्रैक्टिकली उस फेज से गुजरा हुआ हूँ, राइट। मुझे पता है बेसिकली कि हम ये चीज डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हमको कौन से फील्ड में जाना है। क्योंकि अगर आपके पास कल को कैंपस में रिलायंस आती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए 12 lakhs के पैकेज पे, उसी तरह बीपीसीएल आती है अकाउंट्स पेबल के लिए 22 lakhs के लिए, इसी तरह से कुछ थर्ड प्रोफाइल आती है लाइक अर्न्स्ट एंड यंग आती है टैक्सेशन के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज कौन सी है। ऑब्वियसली आप तब डिसाइड करोगे, अभी से डिसाइड करना इज अ वेरी वेरी थियोरिटिकल पॉइंट। ये वैसी बात है कि जब बच्चों से पूछते हैं बचपन में कि बड़े होके क्या बनोगे, राइट, तो कोई बोलता है डॉक्टर, कोई बोलता है इंजीनियर, राइट, ऑलमोस्ट वैसी ही बात है। तो इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से आप लोग समझो कि ये डिसाइड करना इस स्टेज पे पॉसिबल नहीं है, एंड यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट वर्किंग ऑन ऑल दी स्किल्स विच इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो सभी स्किल्स के ऊपर फोकस करना है और सारे ही ऑप्शंस ओपन रखिएगा। अदरवाइज आप पोस्ट क्वालिफिकेशन किसी एक पर्टिकुलर ट्रैप में फंस सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर सेकंड इज लाइक पीपल गो फॉर मैनेजमेंट कंसल्टिंग। उनको एक एक्साइटिंग फील्ड लगता है मैनेजमेंट कंसल्टिंग। मैनेजमेंट कंसल्टिंग भी उसी तरह से, राइट, इसमें भी ओपनिंग्स नहीं आती है। इसमें भी अगर आपको अपॉर्चुनिटीज चाहिए यू नीड टू अप्लाई ऑफ कैंपस, ऑफ कैंपस ही अप्लाई करना है। ठीक है, तो ऐसी चीजों में बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करें। ये पर्टिकुलर केस था जिसमें अगेन दे वर वेरी वेरी कीन अबाउट मैनेजमेंट कंसल्टिंग। बाद में उनकी शॉर्ट लिस्टिंग आई एक बिग फोर से, और बिग फोर में शॉर्ट लिस्टिंग आई, इसका मतलब ये कि दे आस्क फॉर इंड एस। अभी इंड एस ऐसा फील्ड है, ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरा पर्सनल मानना ये है कि वी पीपल आर प्रिपेयर्ड ओनली 10%। हम लोगों की जो प्रिपरेशन है इंड एस को लेकर वो केवल 10%। अब आप बोलोगे कि नहीं हमने तो अभी एग्जाम्स दिए हैं तो हम तो पूरी तरह प्रिपेयर्ड हैं। आप प्रिपेयर्ड हो लेकिन आप थियोरिटिकली प्रिपेयर्ड। मैं इस सेशन के आखिरी में आपसे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछूंगा। आपको उसी चीज को असेस करना है कि आर यू एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस और। ठीक है, तो ये चीजें हमको प्रैक्टिकली तभी क्लियर होंगी जब हम प्रैक्टिकल सिनेरियोज एप्लीकेशन बेस्ड इंडेस हमारे लिए हमारे पास रेडी रहेंगे। ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस क्या इंडेस का मैं अभी आपको और आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है तो मेरा मानना ये कि जो स्मार्टर ग्रुप है, राइट, स्मार्टर ग्रुप रिवर्स प्लानिंग करेगा। और रिवर्स प्लानिंग क्या करेंगे, दैट बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड्स व्हिच कंपनीज हैव पार्टिसिपेटेड, what were their selection rounds and how they have conducted about, and what rounds are conducted by ICA। आप रिवर्स प्लानिंग करो, 2 महीने बाद रिजल्ट्स आएगा उसमें आप क्लियर होते हो, और उसके बाद फिर आपके लिए क्या क्या चीजें आप करने वाले हो वो आज करो। ठीक है, आप आईसीआई कैंपस को समझोगे, आप वो देखोगे कौन कौन सी कंपनीज उसमें आ रही है, उन कंपनीज में से आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस किसमें सबसे ज्यादा है, क्या आपके अटेम्प्ट मैटर करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा टफ क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों से आज पूछूंगा कि क्या आपको लगता है कि अटेम्प्ट मैटर करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दो बहुत बड़े सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि हम लोग क्या प्रोफाइल खुद सिलेक्ट कर सकते हैं या कंपनीज हमको सिलेक्ट करती हैं, और दूसरा ये है कि क्या अटेम्प्ट मैटर करते हैं। ये दो क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से समझ लिए तो मेरे हिसाब से आपकी 80% लाइफ इजी हो जाएगी। और यही दो क्वेश्चन है जहां पर स्टूडेंट्स एक इल्यूजन में रहते हैं और फिर वो गलत तरह से तैयारियां करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इन दोनों चीजों को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी बीच में आया मुझे कि दो क्वेश्चन जो अभी आए हैं उनको पहले ले लेते हैं।
that I am a CA industrial trainee and I'm not liking the role here. Should I join the company and then change the department, or should I go in market and find my suitable work? देखो, आप जिस भी जगह पर अभी ट्रेनिंग कर रहे हो वो ज्यादा लंबा पीरियड तो होगा नहीं, राइट? मे बी 9 मंथ्स और 12 मंथ्स, राइट? उतना ही आपको ट्रेनिंग पीरियड सर्व करना है। तो जैसे तैसे करके कोशिश करो कि किसी तरह से आप कर लो वो चीज, क्योंकि यहाँ पे काम से ज्यादा नाम मैटर करता है। ठीक है, या पूरा जो कैंपस का सिनेरियो, उसमें आप ये देखोगे कि वर्क ऑब्वियसली नॉलेज मैटर कर रहा है, लेकिन नाम जो है वो ज्यादा मैटर करता है। रेज्यूमे में यू शुड हैव अ राइट नेम्स, राइट, जो रिकॉग्नाइज नेम्स है। तो लेकिन फिर भी लाइक अगर आपको बहुत ही ज्यादा मुश्किल आ रही है वहां पे काम करने में, तो मेरा नंबर है आपके पास, डायरेक्ट नंबर। आप मुझे डायरेक्ट कॉल करो और थोड़ा 1-to-1 डिस्कशन करेंगे, एंड देन आई विल गिव यू द मोस्ट सुटेबल व्यू फ्रॉम माय साइड। या और दूसरा क्वेश्चन ये आया है कि व्हाट अबाउट सैप फीको? सैप फीको डेफिनेटली बहुत रिक्वायर्ड है। मतलब पर्सनली स्पीकिंग, अगर आप बहुत सारी कंपनीज में देखोगे तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो बोलेंगे कि हमें सैप वाला बंदा चाहिए, बोलते हैं वो लोग। ठीक है, बट पॉइंट ये है कि ये चीजें बोली जाती है वंस यू विल बी इन दी सीनियर रोल्स, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद। आज ये बेसिक रिक्वायरमेंट में नहीं आता है फ्रेशर के लिए। ये रिक्वायरमेंट आती है 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद, क्योंकि बीइंग अ फ्रेशर दे अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज वर्कड ऑन अ डिफरेंट ईआरपी। किसी ने टैली पे काम किया है, किसी ने ओरेकल पे काम किया है, किसी ने और किसी सॉफ्टवेयर पे काम करा है, किसी ने सैप पे काम किया, तो हर एक को सैप का एक्सपोजर नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर आप इसकी क्लासेस ज्वाइन भी कर लेते हो, तो क्लासेस ज्वाइन करके फायदा कुछ भी नहीं होता है। केवल थियोरेटिकली हम सीखते हैं। इफ यू रिमेम्बर योर आईटी ट्रेनिंग, आईटी ट्रेनिंग में आपने कैसे क्या क्या चीजें सीखी थी? ठीक है, तो क्योंकि सिस्टम हमको तभी समझ आता है जब हम लोग प्रैक्टिकली काम करते हैं उसके ऊपर। लेकिन अगर आप, क्योंकि ये वैसा है कि लाइक आपको बोला गया है कि मैं स्विमिंग सिखा दूंगा आपको, लेकिन स्विमिंग में आपको क्लासरूम में सिखाऊंगा। समझ रहे हो आप? तो सिस्टम सिखाना थोड़ा सा उस तरह का मैटर होता है। और इसकी रिक्वायरमेंट भी बेसिकली अभी नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट आपको आने वाले टाइम में रहेगी। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं रहेगी जिसको सैफी को नहीं आता था और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट, 99% स्टूडेंट जो हमारे पास आते हैं उन्होंने कभी सैप पे काम नहीं किया होता है, लेकिन उनको प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्टिल लाइक इफ यू वांट टू गो फॉर, इसके कुछ कोर्सेज बहुत ही कॉस्टली होते हैं, तो कॉस्टली कोर्सेज में बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। जो मतलब 30,000, 40,000, 50,000 के कोर्सेज जो होते हैं, वो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। बहुत ही कोई ऑनलाइन में बहुत ही कोई इजी गोइंग में आपको बहुत ही सस्ता टाइप का कोई कोर्स मिल रहा हो, तो मैं फिर भी सजेस्ट कर दूंगा कि ठीक है, आप जस्ट नाम के लिए उसको अपने रेज्यूमे में इनकॉर्पोरेट कर लो। लेकिन कॉस्टली कोर्सेज बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। एनीवेज जब आप कंपनीज में जाओगे, दे विल गाइड यू, दे विल टीच यू। ठीक है, तो आप क्यों उसके लिए पे करोगे? ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू दी शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरियाज, राइट? शॉर्ट लिस्टिंग के जो क्राइटेरियाज हैं, ठीक है, हम लोग स्ट्रेट अवे इस बात पर आ जाते हैं। और बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, एम आई वट एवर वी आर स्पीकिंग, राइट, डज इट मेक सेंस? ऐसा तो नहीं हो रहा है कि लाइक मैं कुछ दूसरी दुनिया की बातें कर रहा हूँ और आप लोग उस कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो, राइट? तो इफ यू कैन गिव मी अ क्विक फीडबैक, इज इट गोइंग फाइन और नॉट? All right, okay, good, thank you. So now कमिंग बैक कि ये जो पर्टिकुलर टाइम है, राइट, इस टाइम में हमारा फोकस कहाँ पर रहेगा? तो अगेन वही सिनेरियो अज्यूम करते हैं कि लाइक पोस्ट क्वालिफिकेशन। नाउ पोस्ट क्वालिफिकेशन देयर आर मल्टीपल, दो दो चीजें आएंगी सामने, कैंपस आएगा, एक ऑफ कैंपस आएगा। सबसे पहला फोकस कैंपस पे होता है। जैसे ही आप क्लियर होते हो 10 दिन के अंदर कैंपस के फॉर्म्स आ जाते हैं, और विद इन अ मंथ एक्चुअल कैंपस आ जाते हैं। मतलब आपके पास नेट नेट 30 डेज रहेंगे बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड। जैसे ही आप क्लियर हो गए, आप कैंपस में बैठोगे, मतलब 30 दिन में आपको
अपने आप को पूरी तरह रेडी रखना है। रेडी किस सेंस में रखना है? एक तो तैयारी के सेंस में कि आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो गए। दूसरा, आपको इस चीज के लिए अपने आप को रेडी रखना है कि किस फील्ड में हमको जाना है, राइट? हम जिस कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं वहां पर आई एम श्योर और नॉट कि मुझे इसमें जाना है नहीं जाना है। जैसे मैं जब कैंपस में गया था, अपने कैंपस में, तो मेरे पास चार ऑप्शंस थे। मेरे पास आइडिया सेल्युलर था, मेरे पास सिटी बैंक था, ऑफ कैंपस में मेरे पास बैंक ऑफ अमेरिका था क्योंकि मैंने वहां से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी थी, और उसके अलावा मेरे पास एक जी करके कंपनी थी, उसका ऑप्शन था। तो ऐसे करके हमको डिसाइड करना होता है कि हम किस टाइप के रोल में जाएं। तो ये दो चीजें रहेंगी आपकी, एक तो तैयारी और एक आपको अपने करियर के बारे में डिसाइड करना। ठीक है? तो अब करियर के बारे में डिसाइड करना है तो उसके लिए पहले समझना है कि कौन सी कंपनीज हमको शॉर्टलिस्ट करेंगी। मैंने इसके लिए एक जॉब प्रिडिक्टर बनाया है, राइट? और वो जॉब प्रिडिक्टर मैं आपको सेंड करूंगा। ठीक है? तो बेसिकली इट विल प्रिडिक्ट योर फर्स्ट जॉब बेस्ड ऑन योर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन योर एकेडमिक परफॉर्मेंस, राइट? वो प्रिडिक्ट करेगा कि आपके सामने कौन कौन सी शॉर्टलिस्टिंग आ जाएगी। ठीक है? बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड्स, क्योंकि ये ट्रेंड बहुत प्रिडिक्टेबल है। अब इतने सालों से जब हम देख ही रहे हैं एक जैसा ट्रेंड चल रहा है। 100 एंड 125 कंपनीज आती हैं। उन 125 कंपनीज में से अलग अलग सेंटर पे कौन कौन सी कंपनीज होती हैं। फिर अगर स्टूडेंट के ये मार्क्स हैं, ये अटेम्प्ट्स हैं, ये प्रेफरेंसेस हैं, तो इसके बेसिस पे उनको कौन सी कंपनीज शॉर्टलिस्ट करेंगी वो बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो गया है। थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है 5-10% का, उससे ज्यादा कोई वेरिएशन। तो आज अगर आपको पता चल जाता है कि मुझे ये कंपनी शॉर्टलिस्ट करेंगे, तो बहुत ही इजी बात है कि बस उसकी तैयारी आप स्टार्ट कर दो। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है? तो उसको प्रेडिक्ट करना क्या डिफिकल्ट है? थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है, क्योंकि अगेन देर आर सो मेनी अनसर्टेनिटीज। बट फिर भी आप उसको काफी एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट कर सकते हो ना। उसमें जो मेजर क्वेश्चन है जो आपको समझना भी है और जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज इट इम्पोर्टेंट टू कंसिडर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके हिसाब से मैटर करते हैं या नहीं करते हैं? ठीक है? थोड़ा सा इसके ऊपर क्विक डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप में से कितने लोगों को लगता है दे कैन अनम्यूट देमसेल्फ एंड स्पीक अबाउट इट, ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट मैटर करता है नहीं करता है? इट मैटर्स फॉर द फर्स्ट जॉब, इट मैटर्स, इट मैटर्स। ठीक है? तो थ्री टू ऑफ यू आर सेइंग इट मैटर्स। ठीक है? तो ओके, थ्री ऑफ यू आर सेइंग इट मैटर्स। ओके, सो बेसिकली व्हाट आई बिलीव इज, यस, यू पीपल आर 100% राइट। इसमें कोई 1% का भी डाउट मत रखिएगा कि अटेम्प्ट मैटर नहीं करता है। ये केवल एक यूट्यूब की दुनिया में जो एक बातें होती है कि अटेम्प्ट क्या मैटर करता है, अटेम्प्ट कुछ मैटर नहीं करता, सीए तो सीए ही होता है, राइट? इस तरह की जो चीजें होती है वो आने वाले टाइम के हिसाब से ठीक है। जब आप 1-2 साल निकाल दोगे इंडस्ट्री में, वहां पे फिर अटेम्प्ट मैटर नहीं करेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं पहले जॉब की, जो आपने लिखा है ना निखिल ने, इट मैटर्स ऑन फर्स्ट जॉब। ये एकदम परफेक्ट स्टेटमेंट। ये केवल पहले जॉब में मैटर करता है। रीजन, कंपनीज की जो शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया होता है वो अटेम्प्ट की बेसिस पे। कई कंपनीज खुल के बता देती है, जैसे कि वेदांता, फर्स्ट अटेम्प्ट थ्रू आउट। और फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब इंटरमीडिएट में भी फर्स्ट अटेम्प्ट, फाइनल में भी फर्स्ट अटेम्प्ट। रिलायंस की बात करें अगर, तो रिलायंस समटाइम्स टेक फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट। बीपीसीएल, एचपीसीएल, पीएसयूज, आई पीएसयूज जो हाई पैकेज लेकर आती है, 20 lakhs प्लस, क्लियरली फर्स्ट अटेम्प्ट। आईटीसी फर्स्ट अटेम्प्ट, समटाइम्स दे गो फॉर सेकंड अटेम्प्ट। विप्रो क्लियरली से 3 attempts। तो कुछ कंपनीज बहुत ही क्लियरली बोल देती है कि हमारा ये अटेम्प्ट का क्राइटेरिया। जब इतनी चीजें ऑन पेपर सामने हैं तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अटेम्प्ट मैटर। और कुछ कंपनीज बताती नहीं है, कुछ कंपनीज बोलती नहीं है कि हमारा अटेम्प्ट मैटर करता है, लेकिन फिर भी वो अटेम्प्ट का क्राइटेरिया रखती है। तो एक बात आपको बात अच्छे से समझनी है कि अटेम्प्ट मैटर करते हैं। ठीक है? लास्ट टाइम हमने एक सेमिनार किया था जो कि स्पेसिफिकली अटेम्प्ट के ऊपर था।
अलग अलग अटेम्प्ट्स के ऊपर अलग अलग शॉर्ट लिस्टिंग, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। तो मैं अगर आपको अभी शॉर्ट में बात करता हूँ, तो ये बात है कि जिन लोगों की रैंक या फर्स्ट अटेम्प्ट रहते हैं, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग बहुत ज्यादा आती है। जो हाई प्रोफाइल जॉब्स होते हैं, हाई पेइंग जॉब्स होते हैं, 15 lakhs प्लस, उसमें 90% आप देखोगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट को शॉर्ट लिस्टिंग। ठीक है। सेकंड अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकंड अटेम्प्ट में ड्रास्टिकली डिफरेंस आ जाता है। सेकंड टू थर्ड अटेम्प्ट में फिर थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। थर्ड टू फोर्थ में फिर थोड़ा मेजर डिफरेंस आ जाता है। तो जैसे जैसे अटेम्प्ट्स बढ़ते जाते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग कम होती जाती है, और ये बात चुभने वाली है, अच्छी बात नहीं है ये, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मतलब मैं आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट, लेकिन दिस इज द रियलिटी। और ये रियलिटी के बारे में अगर आपको अभी नहीं बताएंगे, तो आप तो यही सोचोगे कि हम सभी कंपनीज के लिए एलिजिबल है, हर कंपनी में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप आपकी तैयारी फिर सभी कंपनीज के हिसाब से करोगे, जो कि एक टाइम का वेस्टेज है। तो जो बातें इतने सालों से ट्रेंड के हिसाब से एकदम क्लियर है, तो वो बातें आपके सामने क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है आप लोगों को? तो broadly speaking, attempt definitely matters, and you should have that clarity so that you will start your preparation according to the number of attempts. ठीक है, तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर अटेम्प्ट्स ज्यादा रहते हैं, तो फिर हम लोग कुछ स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर भी करते हैं उस चीज को कि आपका अगर कौन सा सेंटर लेना चाहिए। अलग अलग सेंटर में कैंपस होते हैं, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं। तो उसमें से कौन से सेंटर्स में प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस मैटर करता है, लेकिन उतना ज्यादा मैटर नहीं करता। अगर आपने बिग फोर से करी है तो बहुत ज्यादा मैटर करेगा। तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अदर देन बिग फोर, बिग 10 फर्म्स, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेदर इट इज अ स्मॉल साइज फर्म, वेदर इट इज अ मिड साइज फर्म, फिर बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा। ठीक है। दो चीजें जो बहुत ज्यादा मैटर करती है, वो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और मार्क्स। मार्क्स भी मैटर करते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे नहीं पता एग्जैक्ट परसेंटेज देना कि किसका कितना वेटेज रहता है। बट हमेशा अटेम्प्ट्स का वेटेज बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि हम लोग हमारी क्लास में जब देखते हैं कि किसकी कौन सी शॉर्ट लिस्टिंग आई, किसके बेसिस पे आई, तो उसका एक क्लियर आंसर है अटेम्प्ट्स। ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ओके। अब एक क्वेश्चन जो है आपका कि ट्रांसफर आर्टिकलशिप में मैटर करता है। तो ट्रांसफर डेफिनेटली एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आपने ट्रांसफर लिया है तो ट्रांसफर इंस्टीट्यूट अलाउ करता है, राइट? तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप अगर उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए इंटरव्यू में कि हमने ट्रांसफर क्यों लिया, तो वो इंटरव्यू में प्रॉब्लम दे सकता है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम। ठीक है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड थी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो इसमें तो बताइए। ठीक है। तो मैं आपको अगेन बहुत सारी स्टोरीज बता सकता हूँ जो कि इस चीज पर है कि जिसमें से एक स्टोरी जरूर इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत सारी क्लैरिटी दे देगी, थोड़े मिसकंसेप्शंस भी उसमें सॉर्ट आउट हो जाएंगे। सो ये एक स्टूडेंट थे हमारे पास नवंबर 18 में। इन्होंने बहुत ही अच्छी आर्टिकलशिप करी थी, लेकिन टैक्सेशन में करी थी इन्होंने आर्टिकलशिप, और इनके 6 अटेम्प्ट में सीए फाइनल निकला था। इनको ऑब्वियसली थोड़ा शॉर्ट लिस्टिंग का इशू हो रहा था, कॉल्स नहीं आ रहे थे। इन्होंने एक फिल्टर लगा दिया था, एक्चुअली ये भी एक प्रॉब्लम थी। इन्होंने फिल्टर लगा दिया था कि हमने टैक्सेशन में आर्टिकलशिप करी, तो हमारी जो पॉसिबिलिटी है वो टैक्सेशन में ही सबसे ज्यादा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उन्होंने ये फिल्टर लगा दिया था कि हमको टैक्सेशन में ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो उससे उन्होंने उनके जो चांसेस हैं वो थोड़े से और कम हो गए। उसके बाद उन्होंने बोला कि हमको बिग फोर में तो अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि हमारे 6 अटेम्प्ट है, तो 6 अटेम्प्ट के कारण बिग फोर की पॉसिबिलिटी वैसे कम हो जाती है। सो द पॉइंट इज दैट यू शुड नॉट डू ऑल दिस थिंग्स। आप ये मत सोचो कि अ, हमारी आर्टिकलशिप कौन से फील्ड में हुई है, कि कोई थोड़ा मैटर करता है, लेकिन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता।
आपने अगर आपकी कोई आर्टिकलशिप नहीं हुई है बैंकिंग में, तब भी बैंकिंग के मैं आपको हजारों एग्जांपल दे सकता हूँ कि स्टूडेंट्स का बैंकिंग में सिलेक्शन। आपने ऑडिट बिल्कुल नहीं करा है, लेकिन स्टूडेंट्स ने अपने बिग फोर में करियर स्टार्ट करें इन स्टैट्यूटरी ऑडिट फील्ड। तो अपनी आर्टिकलशिप को कंस्ट्रेंट मत बनाइए, उसको वीकनेस मत बनाइए, इट इज योर स्ट्रेंथ। उसको स्ट्रेंथ की तरह प्रेजेंट करना है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि अटेम्प्ट अगर आपके ज्यादा हैं, अगर आपको लग रहा है कि हमारे 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, 7 अटेम्प्ट, इस टाइप से कुछ अटेम्प्ट हैं, तो ऑफ कैंपस अप्लाई बहुत एग्रेसिवली करना है आपको, क्योंकि कैंपस में अगर पॉसिबिलिटी कम बनती है, ऑफ कैंपस में इनका जो सिलेक्शन हुआ था, पहला ही जॉब इनका बिग फोर में लगा था। तो जब इन्होंने हमको सब चीजें बताई, देन आई गाइडेड हिम कि यू शुड नॉट थिंक अबाउट ऑल दिस, यू शुड फर्स्ट ओपन योर सेल्फ, और बिग फोर के लिए बहुत एग्रेसिव तैयारी करो आप। और उसके बाद हम लोगों ने उनके साथ बैठ के एएस और इंडेस इसकी तैयारी स्टार्ट करवाई, ऑडिट की तैयारी करवाई, ऑडिट के फंडामेंटल्स बताया कैसे होता है, क्या होता है। और देन ही अप्लाइड एवरीवेयर। एफर्ट लगा उसमें काफी, लेकिन जो पहला जॉब लगा इनका, पहला ही जॉब पीडब्ल्यूसी में लगा। तो पॉइंट केवल ये है कि हमें ये नहीं सोचना है कि हमारा अटेम्प्ट ज्यादा हो गए तो हमारा कुछ होगा या नहीं होगा। सबसे पहला ही क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये होता है कि कुछ होगा कि नहीं होगा। 100% होगा। जब 16 अटेम्प्ट, 18 अटेम्प्ट, 20 अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, लास्ट टाइम हम लोगों के एक स्टूडेंट का ईवाई में सिलेक्शन हुआ, उनके 16 अटेम्प्ट थे। ठीक है। तो ये कोई थियोरेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, इसलिए आप लोग जो मिसकंसेप्शंस है, ठीक है, उन मिसकंसेप्शंस को बहुत ज्यादा मत सोचिए, बट जो रियलिटी है, जो पास्ट ट्रेंड बोलता है, उस पास्ट ट्रेंड को देखते जाओ। ट्रेंड क्या बोल रहा है, इंडस्ट्री क्या बोल रही है, उस चीज को अगर आप समझते चले गए, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा चीज। ठीक है। तो ये इसलिए केस मैंने आपको बताया क्योंकि आई थिंक दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। उसके अलावा भी अलग अलग काफी सारी स्टोरीज हैं। But I think what is important at this moment is understanding this particular thing, that we need to be open for all the roles, because we do not know which companies will come, campus कैसा आने वाला है। लास्ट टाइम अगर बात करें तो कैंपस इतना अच्छा नहीं आया था, उसके पिछले अटेम्प्ट की बात करें तो कैंपस अच्छा आया था कंपेरेटिवली। तो ये भी इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि कब थोड़ा सा इंडस्ट्री में स्लो डाउन चल रहा है, कब हायरिंग फास्ट हो रही है। तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, इसलिए आप अपने आप को ओपन रखिए। ठीक है। तो अगर पूरी इस कहानी का एक लाइन में इसको अगर डिस्क्राइब करते हैं, तो व्हाट टू डू नाउ डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ कंपनीज यू विल बी शॉर्टलिस्टेड इन। ठीक है। और इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि जो फर्स्ट जॉब प्रिडिक्टर है, उसको जरूर से आप फिलअप करिएगा, मैं उसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो उस प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। ठीक है। फिर भी मैं एक आपको मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ कि ये स्लाइड क्लियर है कि आपको दिख रही है, कंपनी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन प्रीवियस बैच डेटा। दिख रही है स्लाइड आपको? Okay, very good. So this is the this is just वन एग्जाम्पल, राइट। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कंक्लूडिंग डेटा है, लेकिन ये जनरली ट्रेंड रहता है। आप देख रहे हो पहला कॉलम जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट का है, फिर सेकंड अटेम्प्ट, सॉरी फर्स्ट कॉलम रैंकर्स का है, फिर सेकंड है फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो जैसे जैसे अटेम्प्ट बढ़ते जा रहे हैं, शॉर्टलिस्टिंग कम होती जा रही है और पैकेज भी कम होते जा रहे हैं। तो कैंपस की ये रियलिटी। अब इनमें से हमको जो मिल रहा है, ठीक है, हमको उसके लिए तैयारी करनी। अभी अगर सपोज आपके 3 अटेम्प्ट है फाइनल, तो अब आपको ये नहीं करना है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो रैंकर्स के लिए जो कंपनीज आ रही है उसके लिए आप तैयारी, क्योंकि आप उसकी तैयारी करोगे आपका टाइम गलत जगह खर्च हो जाएगा। अगर आपके 3 अटेम्प्ट हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हुए कम से कम 1 साल हो चुका है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल वर्ल्ड से आपको 1 साल हो गया है डिटैच हुए। तो हमको हमारी उन चीजों पे काम करना है जो चीजें रिक्वायर्ड है, रादर देन समथिंग एल्स। आपने सपोज ग्रुप 1 पहले क्लियर कर लिया है। आप में से कितने लोगों ने ग्रुप 1 क्लियर कर लिया है ऑलरेडी?
Any one of you has cleared group 1? All right, अच्छी बात है। ग्रुप 1 अगर अभी क्लियर नहीं है तो आप देखते हो ग्रुप 1 में जो दो सब्जेक्ट्स हैं, इंडेस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और ऑडिट, ये दोनों बड़े ज्यादा काम आते हैं। ऑडिट ऑल्दो इतना ज्यादा काम नहीं आता है क्योंकि ऑडिट में एग्जाम्स में थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ पर प्रैक्टिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसी चीजों पे आप जहां पर आपको लग रहा है कि ये इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, यहाँ पर आपको ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, तो ये स्लाइड अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझने के लिए कि जैसी जैसी शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया अटेम्प्ट के ऊपर रहता है और अटेम्प्ट के हिसाब से शॉर्टलिस्टिंग जब आती है तो उन कंपनीज के ऊपर फोकस करना इंपॉर्टेंट है जहां पे हमारी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अभी तक का ये जो डिस्कशन है आई बिलीव ये आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम ट्रेंड बात कर लेते हैं कि कैंडिडेट कितने कैंपस के अंदर बैठते हैं। आईसीआई कैंपस के बारे में बात कर लेते हैं। सो बेसिकली आईसीआई कैंपस हर साल हर अटेम्प्ट के बाद होता है, राइट। 30 डेज के बाद कंपनीज आ जाती हैं, अलग अलग सिटीज में होता है। पहले हमको फिजिकली वहां जाना पड़ता था, मुंबई में है तो मुंबई जाते थे, बैंगलोर है तो बैंगलोर जाते थे, अलग अलग सिटीज हम सिलेक्ट करते थे। अब बहुत अच्छा हो गया है, कोविड ने एक जो अच्छी चीज कर दी वो ये कर दी कि अब घर बैठे ही आपको इंटरव्यू देना है, तो जाने आने का जो पेन है वो खत्म हो गया इसमें। वर्चुअल इंटरव्यूज हो रहे हैं, ओके, वर्चुअल ग्रुप डिस्कशंस हो रहे हैं। तो अच्छी बात भी है और थोड़ी सी खराब बात भी है। खराब बात ये है कि जब हम वहां जाते थे तो जो जो कंपनीज ओपन कर देती थी उसमें भी बैठने का मौका मिल जाता था। कई बार ये होता था कि जिन कंपनीज ने हमको शॉर्टलिस्ट नहीं किया वहां पे भी मिल जाता था मौका, क्योंकि हम फिजिकली वहीं होते थे। तो कंपनीज बुला लेती थी कि चलो ठीक है हमारे पास कैंडिडेट नहीं है अभी, आप आ जाओ। तो ये चीजें नहीं होती है अब। जो जिस कंपनीज में आप शॉर्टलिस्ट हुए हो जनरली उसी कंपनीज में आप बैठते हो। बट ठीक है, हर सेंटर तो आपको एक सेंटर सिलेक्ट करना रहेगा। जब आप सिलेक्ट हो जाओगे, जब आप सीए क्वालिफाई हो जाओगे, उसके बाद एक सेंटर सिलेक्ट करना रहेगा कि जिस सेंटर में आप बैठना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मुंबई, फॉर एग्जांपल दिल्ली, फॉर एग्जांपल बैंगलोर। वहां पर जितनी भी कंपनीज आती हैं उन वो कंपनीज आपको शॉर्टलिस्ट करेंगी। सपोज वहां पर 30 कंपनीज आई, आप जब अपना फॉर्म फिल कर दोगे तो वो कंपनीज आपकी प्रोफाइल देखेंगी, आपके अटेम्प्ट्स देखेंगी, आपके आर्टिकल्स ऑफ एक्सपीरियंस देखेंगी, उसके बेसिस पे वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगी। तो जनरली सपोज 30 कंपनीज में से 10 कंपनीज ने मान लेते हैं आपको शॉर्टलिस्ट करा, उन 10 कंपनीज में से आप मैक्सिमम 4 कंपनीज को सिलेक्ट कर सकते हो। सो मतलब शॉर्ट में अगर बात करें तो आपके पास 4 कंपनीज में बैठने की अपॉर्चुनिटी रहती है इन दी कैंपस। ठीक है, तो ये 4 कंपनीज अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, 4 कंपनीज की अपॉर्चुनिटी है और नेचुरली आप जो अच्छी प्रोफाइल अच्छा पैकेज ऑफर करते हैं उन कंपनीज में आप बैठते हो। तो ये ट्रेंड ये बोलता है कि 10,000 स्टूडेंट के करीब कैंपस में रजिस्टर करते हैं, करीब 7-8 थाउजेंड अपीयर करते हैं और 3-4 हजार स्टूडेंट उसमें सिलेक्ट होते हैं। तो कभी 30%, कभी 50%, मतलब 10 में से 3 या कभी 10 में से 5 ऐसे लोग सिलेक्ट होते हैं। जो बचे हुए 50% स्टूडेंट्स हैं वो फिर ऑफ कैंपस ट्राई करते हैं। तो ये मोटा मोटा एक ट्रेंड है। दूसरी बात ये है कि पैकेज, हायर पैकेजेस, ऑब्वियसली हर कोई चाहता ही है कि हम लोग हायर पैकेजेस पे जाएं। यस, ऐसा तो कोई नहीं होगा जो ये बोलेगा कि नहीं हमें तो आ, कम पैकेज भी चल जाएगा। यस, तो सबको हायर पैकेजेस चाहिए। अभी हायर पैकेजेस में अगेन यू विल फाइंड दैट कम स्टूडेंट्स आते हैं उस रेंज में। 15 lakhs प्लस की अगर बात करें तो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हु हैव गॉट मोर देन 15 lakhs। ठीक है, तो बट आपको यही चीज समझनी है कि हमारे उसमें बैठने के कितने चांसेस हैं। ठीक है, इस स्टेज तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बताइए मुझे। काफी चीजें हमने डिस्कस कर ली है, हमने बात कर ली है कि कैंपस किस टाइप से कंडक्ट किया जाता है, कितनी कंपनी शॉर्टलिस्ट करेंगी। मैं आपको ग्रुप में
पास्ट में जो कंपनीज आई थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उसका भी मैं आपको डेटा भेज दूंगा। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट एक कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि यस, ये कंपनीज पार्टिसिपेट कर। ठीक है, अभी व्हाट अबाउट लर्निंग पाइथन? देखो, पाइथन हो गई, पावर बीआई हो गया, ये चीजें दे आर गुड टू ऐड। आई एम सेइंग कि दे आर गुड टू ऐड। ओनली थिंग इज, जब आपको इसको अप्लाई करने की कोशिश करते रहना चाहिए। केवल आपने सीखा और 10 दिन बाद, 10-15 दिन बाद आप उसको बोलना स्टार्ट कर दोगे अगर उसका एप्लीकेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आप सीख रहे हो तो उसको अप्लाई भी करो। और क्योंकि जब आप पाइथन लिखोगे तो इंटरव्यू में वो पूछेंगे आपसे कि आपने क्या सीखा पाइथन। और अगर हम आंसर दे पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे पाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा कि इन्होंने केवल लिखने के लिए लिखा है। तो एनीथिंग विच वी आर राइटिंग, वी नीड टू हैव अ राइट अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। कई लोग जैसे फाइनेंशियल मॉडलिंग लिखते हैं, लेकिन फाइनेंशियल मॉडलिंग उनको उतना क्लियर नहीं हो पाता है, तो फिर जब इंटरव्यूज होते हैं तो वो गड़बड़ा जाते हैं उसमें। तो उससे तो बेटर ये है कि नहीं लिखे। ठीक है ना, तो इफ यू आर राइटिंग समथिंग देन गेट अ कंप्लीट गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। और स्किल सेट के हिसाब से डेफिनेटली आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो तो अच्छी बात है, चीजें ऑटोमेशन पे जा रही हैं। तो अगर आप कोई चीज सीख रहे हो, जो टूल्स हैं वो सीख रहे हो, अगर कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, कोई टूल्स सीख रहे हो, तो नेचुरल वो एक अच्छी बात है लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इज देयर एनी चांस दैट वंस यू सिलेक्टेड एंड कंपनी डजंट गिव यू एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरव्यू? हाँ हाँ, ये भी हुआ है एक्चुअली। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपने सिलेक्ट कर ली कंपनी को और कंपनी ने बाद में बोला कि नहीं, हमारे पास अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, या हमको जो कैंडिडेट चाहिए थे वो मिल चुके हैं हमको ऑलरेडी। तो ये चीजें हो चुकी है पास्ट। ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस में होती हैं लेकिन हुई है। और आप एग्जैक्टली 1 साल पहले, मतलब अगर हम बात करें नवंबर 22 की, सॉरी मई 22 की, तो उस अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा ही हुआ था, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, ठीक है, तो लेकिन वो एक्सेप्शनल अटेम्प्ट्स थे। एंड आई डेफिनेटली, यू शुड आल्सो प्रे एंड कि ये चीजें वापस रिपीट ना हो किसी भी तरह से। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। अब हम लोग इस चीज पर आ जाते हैं कि व्हाट आर दी प्रोफाइल्स, राइट? तो मैं आगे एक और सेमिनार करूंगा। ओके, दैट इन दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट जो स्पेसिफिक कंपनीज आती हैं, राइट? वो कंपनीज क्या रोल लेकर आती हैं। ऑडिट के लिए आती है, टैक्स के लिए आती है, इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए आती है, या जो भी, मतलब प्रोफाइल्स, अलग अलग प्रोफाइल्स हैं, उनमें एग्जैक्टली वर्किंग क्या होती है। तो टाइप ऑफ कंपनीज वी विल बी कवरिंग इन पार्ट 2। यस डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच। हम लोग जल्दी ही करेंगे वो। अब आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के साथ छोड़ देता हूँ। और जैसा मैंने बोला था लास्ट में आपको, हम लोग एक कैंपस क्विज करेंगे। ठीक है, कैंपस क्विज से एक अंडरस्टैंडिंग आ जानी चाहिए कि लाइक किस तरह की तैयारी और किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे सामने आ सकते हैं। ठीक है, तो अब लास्ट एट आस्क्ड फॉर 75 मिनट्स, मैंने आपके 75 मिनट्स मांगे थे, तो वी स्टिल हैव 15 मिनट्स। तो इन 15 मिनट्स में अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस मैं आपको जनरल क्वेश्चंस के साथ छोड़ के जा रहा हूँ। और कुछ हम लोग अभी कैंपस की क्विज करेंगे और फिर उसके बाद आई विल टेल यू द गिफ्ट दैट वी हैव सेट फॉर यू। ठीक है, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं क्या? डज आर्टिकलशिप हैज एन इम्पैक्ट ऑन जॉब? डिड आर्टिकलशिप इन टैक्स, विल आई गेट जॉब इन टैक्स ओनली? और इज इट गुड टू वर्क इन मेट्रो और वर्सेस होम टाउन? तो इसमें से 3 क्वेश्चन के मैं आंसर दे चुका। नंबर ऑफ अटेम्प्ट मैटर करते हैं। आर्टिकलशिप का इम्पैक्ट जॉब पर तब होता है अगर हम बिग 4 या बिग 10 फर्म से करते हैं, अदरवाइज बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और अगर आपने आर्टिकलशिप किसी स्पेसिफिक फील्ड में करी है तो जरूरी नहीं है कि आपको उसी फील्ड में जॉब मिले, आप हर जॉब के लिए एलिजिबल और ओपन। ठीक है, वर्किंग इन मेट्रो वर्सेस होम टाउन, ये क्वेश्चन आपको खुद को डिसाइड करना है।
कि आपका प्रेफरेंस क्या है, क्योंकि उसके हिसाब से भी आपका करियर का पूरा डिसीजन चेंज हो जाता है। ठीक है, स्टार्टअप वर्सेस एस्टेब्लिश्ड कंपनी, मेरा सजेशन ये, फर्स्ट जॉब ले रहे हो तो एस्टेब्लिश्ड कंपनी। ठीक है, इंडस्ट्री वर्सेस बिग फोर, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अभी डिसाइड नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आपको अगेन यू नीड टू बी फिल योर फर्स्ट जॉब प्रेडिक्टर के हिसाब से आप बेटर आंसर कर पाओगे। विच कंपनी ऑफर्स वर्क फ्रॉम होम, राइट? वर्क फ्रॉम होम, देखो वैसे तो बहुत सारी कंपनीज वर्क फ्रॉम होम ऑफर करती है, लेकिन ये बात अच्छी लिखी है आपने निखिल, कि अपने आप को रेस्ट्रिक्ट मत करिए वर्क फ्रॉम होम के लिए। वैसे भी कोविड के बाद कम हो गई है ऐसी कंपनीज जो वर्क फ्रॉम होम ऑफर कर रही है। तो आ, और पर्सनली स्पीकिंग, अगर अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, अगर आपके पास कंफर्ट है जाने का, तो जाओ। जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं उनके नेटवर्क बिल्ड नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि यू डू नॉट नो मेनी पीपल, प्रोफेशनल रिलेशंस आपके बिल्ड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पीएसयू वर्सेस प्राइवेट सेक्टर, इसके बारे में भी हम लोग करियर के सेशन में डिस्कस करेंगे। कई लोग सोचते हैं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये सरकारी जॉब मिल जाए मजा आ जाएगा। ठीक है, काम भी कम, पैसा भी ज्यादा, मजे ही मजे, राइट? तो ये थॉट होता है पीएसयू वर्सेस प्राइवेट, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सीटीसी वर्सेस प्रोफाइल, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट टाइप ऑफ कंपनीज नॉर्मली हायर सीए फ्रेशर्स, इसकी मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, ठीक है, ग्रुप में। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मैनेजमेंट, कंसल्टिंग में चांसेस हैं क्या? 1% चांस है। 1% भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपने ऑफ कैंपस अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर लिया, तब जाके 1% चांस बनते हैं। ठीक है, अच्छा, हमने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं करी पैकेजेस के बारे में, तो एक्चुअली ये सबसे पहले ये बात कर लेनी चाहिए थी। पैकेजेस, राइट? क्या आपके हिसाब से एवरेज पैकेज जाता है सीए फ्रेशर के लिए? 10 to 11 lakhs, यस, परफेक्ट, राइट। एवरेज पैकेज जो है वो अभी है 10 to 11 lakhs। मिनिमम पैकेज कैंपस में अगर बात करते हैं, तो दो तरह के कैंपस होते हैं। एक होता है लार्ज कैंपस, एक होता है स्मॉल कैंपस। लार्ज और स्मॉल दोनों में ही 9 lakhs मिनिमम पैकेज है, राइट? कोई भी कंपनी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है अगर वो 9 lakhs से नीचे का ऑफर कर। एवरीवन हैज टू ऑफर मोर देन 9 lakhs। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि 9 तो मिनिमम हो ही गया। लेकिन जो नए सेंटर्स हैं, जैसे भोपाल और एक दो ऐसे सेंटर्स और नए ऐड हुए, उनमें मिनिमम है 7.2। ठीक है, तो 90% प्रोबेबिलिटी कहाँ जाती है आपकी? 9 lakhs की मिनिमम। ठीक है, और मैक्सिमम की अगर बात करें तो फिर तो वो 30 lakhs, 31 lakhs तक भी गए हैं। लेकिन ज्यादा करके जो रेंज की अगर बात करते हैं, तो वो 10 से 11 लाख के एवरेज के अराउंड रहती है। ठीक है, इससे एक बात और आप लोग समझो कि ये जो पैकेजेस हैं पिछले 2-3 साल में तेजी से बढ़े। ये एक टाइम पे 5.5 हुआ करता था, जो अभी 9 lakhs हो गया। 2-3 साल पहले की मैं बात कर, तो ऐसा क्या हुआ कि 2-3 साल में 5.5 से 9 lakhs डबल हो गए पैकेजेस। तो ऑब्वियसली कुछ कंपनीज ने बढ़ाए हैं पैकेजेस, लेकिन इंडस्ट्री में इतनी तेजी से नहीं बढ़े हैं। ठीक है, इसलिए जो नंबर ऑफ ओपनिंग्स हैं, हर कंपनी के पास इतना बजट नहीं है कि वो 9 lakhs, 10 lakhs, 12 lakhs ऑफर करे। इसलिए आपको बात समझनी है, क्योंकि पैकेजेस बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ ओपनिंग्स कम, थोड़ी कम हो गई है। क्योंकि कंपनीज को लगता है कि हम ऑफ कैंपस हायर कर लेते हैं, क्योंकि कैंपस में जाएंगे तो 9 lakhs के ऊपर देना पड़ेगा, तो कैंपस में ना आके ऑफ कैंपस कम पे हायर करने की कोशिश करते हैं। तो कंपटीशन उस एंगल से बढ़ गई है। इसलिए ये बात को आपको समझना है कि टू बीट दैट कंपटीशन, यू शुड बी अहेड ऑफ एवरीवन, राइट? तो थोड़ा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे भी। ठीक है, इस तरह के और भी काफी क्वेश्चंस करियर रिलेटेड हम लोग आने वाले सेशंस में कवर करेंगे। जो ये अपॉर्चुनिटीज है, वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है,
ठीक है, फिर उसका मीनिंग क्या है, उनको अप्रोच कैसे करना है। कॉर्पोरेट्स में लाइक सीएफओ बनना है अगर आपको, तो सीएफओ के लिए करियर पाथ क्या रहने वाला है। तो ये जितना भी हमारा डिस्कशन रहेगा ये पार्ट 2 में रहेगा करियर वेबिनार के। आई विल अगेन सजेस्ट यू कि डेफिनेटली डू अटेंड दैट एज वेल। अभी इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये देख सकते हो आप थोड़ा सा, जो मैंने आपको सेंटर्स बताए हैं, कि किस सेंटर में कितनी कंपनीज आती हैं। ठीक है, तो ये भी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं इनकी लिस्ट भेज दूंगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ स्लाइड्स हैं जो मैं अगले सेशन में कवर करूंगा। ठीक है, क्योंकि उसमें भी आई थिंक इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग थिंग। थॉट ऑन सीपीए, राइट। सीपीए के ऊपर मेरा थॉट ये है कि अगर आप बाहर जाना चाहते हो, राइट, आपको लगता है कि अब तो डॉलर्स में पैसा बनाना है, ठीक है, तो जरूर करो सीपीए। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, राइट, उन उन कंट्रीज का जो सीपीए है वो करोगे तो वहां पर आपको जॉब मिलेगी। तो अगर आपको इंडिया के बाहर का मन है और स्पेसिफिकली कोई कंट्री डिसाइड कर लिया आपने, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा, यूएसए, तो वहां का फिर आपको सीपीए कर लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन इंडिया में जॉब करनी है अगर आप, तो फिर कोई फायदा नहीं उसको करके, फिर तो सीए इज सफिशिएंट। नाउ सिलेक्शन प्रोसेस, कुछ राउंड्स की बात कर लेते हैं। कंपनीज जो राउंड्स कंडक्ट कराती हैं, जैसे कि अर्नस्ट एंड यंग, राइट, स्टैट्यूटरी ऑडिट प्रोफाइल के लिए ग्रुप डिस्कशन, टेक्निकल राउंड और फाइनल राउंड, मतलब इंटरव्यू का राउंड। जीडी भी करवाया, इंटरव्यू भी करवाया। विप्रो की अगर बात करते हैं तो विप्रो ने क्या करवाया, विप्रो ने बेसिकली रिटर्न टेस्ट करवाया। विप्रो एकमात्र ऐसी कंपनी है जो लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स के टिपिकल क्वेश्चन पूछती है। तो ये बात मैं आज ही आपको बहुत ही अच्छे से बता देता हूँ कि आपके अगर 3 अटेम्प्ट हैं फाइनल में, तो आप विप्रो 3 या उससे कम है तो आपको विप्रो में शॉर्ट लिस्टिंग मिलती है। कई बार वो 4 अटेम्प्ट भी कर देते हैं। ठीक है, तो 4 या 3 अटेम्प्ट है अगर आपके, तो विप्रो में शॉर्ट लिस्टिंग आती है। और विप्रो का जो रिटर्न टेस्ट होता है वो बहुत टफ होता है। 80% लोग रिटर्न में रिजेक्ट हो जाते हैं। तो 10 लोग बैठेंगे, 8 टेस्ट में ही बाहर हो जाते हैं, तो 2 बचते हैं और 2 में से फिर सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आप लोगों को जो मैथ्स और रीजनिंग, अगर आपके 3 या 4 अटेम्प्ट, और विप्रो इज अ वेरी गुड कंपनी। ठीक है, ये लोग बहुत लेट रियलाइज करते हैं, तैयारी नहीं करते हैं, और एंड में फिर ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप चाहते हो तो मेरा विप्रो के ऊपर एक वीडियो भी है यूट्यूब के ऊपर, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, उसको देखिएगा एक बार, और उसके हिसाब से तैयारी भी स्टार्ट करिए। ठीक है, तो ये क्योंकि एंड में नहीं हो पाएगी तैयारी, रीजनिंग मैथ्स ये सब एंड में नहीं हो सकती है। इसके लिए थोड़ा आपको प्री तैयारी करना स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह से वेदांता जीडी करवाता है। तो कुछ कंपनीज जीडी करवाती हैं। जीडी में अगर आपको लग रहा है कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है अगर, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट है और आप पॉजिटिव हो क्लियर होने के बारे में, तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि जीडी की तैयारी स्टार्ट करो। वाई एम सेइंग फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि जीडी जैसे पहले कंपनीज करवाती थी वैसे नहीं करवाती आजकल, बहुत कम कंपनीज कराती है। तो ज्यादा करके वही लोगों को मौका मिलता है जिनका रैंक है फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट। उसके बाद में जो कंपनीज आती हैं वो डायरेक्टली इंटरव्यूज कर, उसके बाद की जो शॉर्ट लिस्टिंग है। तो अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो 100% आप जीडी फेस करोगे। और अगर आपके 3 से ज्यादा अटेम्प्ट है तो 90% पॉसिबिलिटी ये है कि आप जीडी फेस नहीं करोगे। बहुत क्लियर बात है ये। ठीक है, तो इफ इट इज इफ यू आर हैविंग दैट थिंग, तो आप थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करिए। वैसे तो मैं सभी को बोलूंगा कि न्यूज़पेपर पढ़ो, आपको इंटरव्यूज में भी हेल्प करेंगे। तो एक पेपर कोई भी एक फिक्स कर लो, इकोनॉमिक टाइम्स और वट एवर, और जीडी की तैयारी
उस हिसाब से आप कर सकते हो। थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस बढ़ाओगे तो आपके पास जीडी के स्किल्स अपने आप थोड़ा डेवलप होंगे। ठीक है। और इंटरव्यूज, टेक्निकल इंटरव्यूज, ऑब्वियसली हर कंपनी टेक्निकल इंटरव्यू तो करवाती है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है। ओके, तो रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है, तो उसके लिए रेज्यूमे चाहिए। आप लोगों ने रेज्यूमे बनाया, नहीं बनाया? अगर नहीं बनाया है तो विल शेयर यू रेज्यूमे फॉर्मेट, और उसके बाद आप रिव्यू के लिए भेज भी सकते हो। ठीक है, तो विल सेंड यू दोस स्टफ ऑन द ग्रुप। तो फर्स्ट इज रेज्यूमे, सेकंड इज रिटन टेस्ट। कुछ कंपनीज कराती हैं रिटन टेस्ट, लाइक रिलायंस, लाइक एल&टी, लाइक विप्रो, और भी कुछ कंपनीज हैं जो करवाती हैं। फिर उसके बाद जीडी। जीडी जैसा मैंने आपको बताया कि कम हो गए, पहले बहुत होते थे, हर कंपनी जीडी करवाती थी, अब कम हो चुके हैं जीडी का जो प्रोसेस है। तो उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यूज, एचआर इंटरव्यू और फाइनल राउंड। ठीक है। तो कुछ हो ना हो, टेक्निकल इंटरव्यू जरूर होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और टेक्निकल इंटरव्यू के लिए डेफिनेटली यू नीड टू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट टेक्निकल क्वेश्चंस। ठीक है। तो अब हम हमारे कैंपस के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। जो उसका करेक्ट आंसर देंगे डेफिनेटली उनके लिए गिफ्ट है, और जो नहीं देंगे उनके लिए भी गिफ्ट है। ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली जो करेक्ट आंसर देंगे उनके लिए स्पेशल कुछ रहेगा। जितने भी पार्टिसिपेंट है उनके लिए ऑब्वियसली गिफ्ट तो है ही। तो फर्स्ट इज रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू, राइट? तो मैं एक क्वेश्चन आप लोग से जनरली पूछता हूँ। काफी क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसमें से हम सबसे क्विक क्वेश्चन ले लेते हैं। एज पर इंडेस, शुड लैंड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और नॉट? लैंड का वैल्यूएशन, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लैंड एज अ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आई एम टॉकिंग अबाउट लैंड एज असेट। तो लैंड का वैल्यूएशन कॉस्ट पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या थॉट है आपका? एनीवन? यस, Sir, may I try? यस प्लीज। Sir, it ideally it should be, in my opinion, it should be measured at cost only. Because सर अगर लैंड को अपन रिवैल्यूएशन करके मेजर करेंगे तो वो जो बैलेंस शीट है उसमें जो रिजर्व्स हैं वो फिक्टिशियस दिखेंगी, एक तरीके की, मतलब एक्चुअल रिजर्व नहीं रहेंगी वो। दैट्स ऑलराइट। व्हाई। So basically, you are saying that land should be valued at cost. यस सर। All right, as per Ind AS. Okay, good, good, good. अभिन्न ने भी यही लिखा है, लैंड शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट। ठीक है, दो आंसर हैं, दोनों आंसर इट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट। और कोई आंसर है किसी का? एनी अदर थॉट? ऑल राइट, ठीक है। तो अब आपको इस बात को समझना है कि बेसिकली लैंड इज अ पार्ट ऑफ पीपीई, तो इस पे इंडेक्स 16 अप्लाई होगा। इंडेक्स 16 ये बोलता है कि जो इनिशियल मेजरमेंट है, इनिशियल रिकॉग्निशन है, दैट विल बी हैपन एट कॉस्ट। बट जो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है उसके पास, उसमें आपको ऑप्शन है, इफ यू वांट टू कीप इट एट कॉस्ट और इफ यू वांट टू कीप इट एट रिवैल्यूएशन। लेकिन इंडेक्स बहुत क्लियर है इस बात पे कि आपको उसको फेयर वैल्यू तो करना ही है। नाउ यू हैव बोथ द चॉइसेस, यू कैन फेयर वैल्यू एट कॉस्ट और यू कैन फेयर वैल्यू एट रिवैल्यूएशन। वो अब आपके हाथ में है, वो किस पे करना है। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि इट शुड बी वैल्यूड ओनली एट कॉस्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपको इंडेक्स, जब भी कैंपस की बात आती है तो सबसे पहली बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या पढ़ना है, तो दैट आंसर इज इंडेक्स। जब मैं आपको अगले सेशन बताऊंगा कौन कौन सी कंपनीज सिलेक्ट शॉर्टलिस्ट करती हैं, तो उसमें मैं आपको बहुत ही क्लियरली बता दूंगा कि उन कंपनीज का क्राइटेरिया क्या है, उनके क्वेश्चंस क्या हैं। तो उसमें आपको क्लियरली दिख जाएगा कि इंडेक्स इज अ वेरी कॉमन थिंग। ठीक है, सो दिस इज वन क्वेश्चन। ठीक है।
अगर एक और क्वेश्चन लेते हैं, सपोज आप सब लोग नेटफ्लिक्स यूज करते हो, ठीक है, और ये भी बात आपको बहुत क्लियर है कि नेटफ्लिक्स जो है वो कई बार ऐसा ऑफर चलाता है कि एक महीना आप फ्री में यूज करो उसको, ठीक है। तो नेटफ्लिक्स ने आपको अगर एक महीना फ्री दिया और एक महीने के बाद फिर वो बोलते हैं कि हम चार्ज करेंगे, तो ये जो एक महीना जो फ्री मिला है आपको, इसको नेटफ्लिक्स रेवेन्यू में किस तरह से रिकॉग्नाइज करेगा? Sir, revenue would be recognized proportionately on the basis of year. I think it will be distributed on a proportionate basis. प्रोपोर्शनेट बेसिस मतलब कि जो आगे की जो रेवेन्यू है उसमें वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Yes. करेक्ट? ओके 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 ओके, गुड ट्राई, यस गुड ट्राई, ऑफ कोर्स, वेल डन। और बताइए, एनीवन एल्स? सर रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस सर। मतलब वो जो बाद में रेवेन्यू होगी ना, जो फ्री ऑफर के बाद वाली रेवेन्यू होगी, उसको अपन क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस पे रिकॉग्नाइज करेंगे। नहीं, ये जो फर्स्ट मंथ है, इस फर्स्ट मंथ के रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे जिसमें आपने कुछ भी पे नहीं करा है? सर जो नेक्स्ट मंथ में अपन को पेमेंट रिसीव होगा सर, उसको अपन, इसको तो एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे, और जो नेक्स्ट मंथ में अपन को रेवेन्यू रिसीव होगा उसको अपन बाइफरकेट करेंगे। तो वो दो पार्ट में बाइफरकेट होके फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ में से प्रोपोर्शनेटली डिवाइड होगा। आपको, आपने सपोज जनवरी में लिया है सब्सक्रिप्शन, तो पूरा जनवरी तो फ्री मिला आपको। उसके बाद फरवरी में आपने डिसाइड करा है कि अभी मेरे को कंटिन्यू करना है, तो पेमेंट आपने करा फरवरी में। तो जब फरवरी में पेमेंट करेंगे तो फिर जनवरी में रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे उसको? यस, एनीवन एल्स हु हैज सम थॉट ऑन दिस? सो गुड ट्राई, आई वुड से। अच्छी बात है कि आप लोग, यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग, राइट? जो जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कैंपस की तैयारी में, हम लोगों की क्लासेस में भी अगर आप देखोगे तो इट इज अ टू वे इंटरेक्टिव क्लासेस। हम लोग क्लास में क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में डिस्कशन करते हैं, बिकॉज स्टूडेंट हैव टू स्पीक अप। अभी तक फाइनल के एग्जाम्स में आपको लिखने का काम था, अब यहाँ पर आपको बोलने का काम। तो आप बोलोगे नहीं तो आपकी तैयारी होगी नहीं। तो इसलिए हम लोग इसी तरह से रखते हैं कि लाइक इट शुड बी टू इंटरेक्टिव, एंड देयर इज नो पॉइंट इन, देयर इज नो प्रॉब्लम इफ इट इज राइट और रॉन्ग, ठीक है। More important thing is whether you are able to think something logical or not. So your answers are logical, but जो right answer है basically is perfect, is scenario का, that is because the first month is free and there is no legal obligation on the customer part that he has to subscribe for Netflix. So there will not be any revenue that will be recognized for the first month. जो free month है उसके लिए कोई revenue recognize नहीं होगी, बिकॉज जो पहली कंडीशन है इंडेज की, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ये बोलती है कि अगर दोनों में से कोई भी एक पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ती है तो उसके लिए कोई ना कोई फाइनेंशियल चार्जेस या फाइनेंशियल पेनल्टी होनी चाहिए। यहाँ पर कोई लीगल ऑब्लिगेशन, वी आर फ्री टू वॉक अवे, हम कभी भी यहाँ से निकल के जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए पहले महीने की रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगी, राइट? जब से वो डिसाइड करेंगे कि अब हमें लेना है, उस दिन से उसकी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज। तो मेरा आपको सजेशन ये है कि इंडेस के क्वेश्चन आप 101% फेस करोगे। आप अपने सीनियर से बात करिएगा कि इंटरव्यू का उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। 99% सीनियर आपको बोलेंगे कि इंडेस के क्वेश्चन उन्होंने फेस कर। तो इंडेस 115, 116, 16, 2 एंड 12 और 109, ये आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। इंडेस 115, 116 लीज, इंडेस 2 12, 2 12 16 एंड 109, ठीक है। ये मिनिमम आप पढ़ लीजिए। मेरा मानना है कि 75% क्वेश्चन इनमें से है, ठीक है। और इसमें अप्लाइड एप्लीकेशन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग वो ज्यादा इंपॉर्टेंट।
तो ये तो बात होगी इंडेस की। अब उसके बाद सवाल आता है ऑडिट का, तो ऑडिट के भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि लाइक ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, इसी तरह से ऑडिट के क्वेश्चंस आते हैं कि सपोज आपको कोई एक नोटिस मिला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें उन्होंने डिमांड रखी कि कंपनी को 5 करोड़ रुपए पे करने। अब आप इसको की ऑडिट मैटर में लेके जाओगे या एम्फेसिस ऑफ मैटर में लेके जाओगे? यस, SB. इस क्वेश्चन को भी लेते हैं। आपको एक इनकम टैक्स से डिमांड आती है कि 5 करोड़ आपको पे करना है, ठीक है। अभी आप इसको एम्फेसिस ऑफ मैटर में लेके जाओगे या की ऑडिट मैटर में लेके जाओगे? So it depends upon how it affects the financial statement. If it is affecting, like it is hampering the going concern of a company, then it would be taken as a key audit matter, and reporting would be done as per modified or qualified opinion would be given. And if it is not affecting, then on as per SA 706, other matter and EU emphasis of matter para can be suggested. Okay, so basically it is a matter of going concern, ठीक है। और बताएं, और कोई आंसर? और कोई थॉट है? यस। ओके, तो देखो स्टैंडर्ड जो बोलता है, स्टैंडर्ड ये बोलता है कि एम्फेसिस ऑफ मैटर में वो मैटर्स आते हैं जो ऑलरेडी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बता रखे। तो अगर आपने ये वाला मैटर ऑलरेडी बता रखा है और उसको आप स्पेसिफिकली केवल हाईलाइट कर रहे हो, तो ये एम्फेसिस ऑफ मैटर में आएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो हम उसको की ऑडिट मैटर में लेकर जाएंगे। तो आपको आपके आंसर में भी इसी तरह से बात रखनी है कि हम लोगों को ईओएम और केएम में ये डिफरेंस है, और इसलिए बेसिकली हम इसको, अगर ये ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है तो हम इसको ईओएम में ले जाएंगे, अदरवाइज हम इसको केएम में ले जाएंगे, ठीक है। तो ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछते हैं, मटेरियलिटी के ऊपर पूछते हैं, गोइंग कंसर्न पूछते हैं, ऑडिट एजर्शंस के ऊपर पूछते हैं, थोड़ा बहुत सैम्पलिंग के ऊपर आता है, की ऑडिट मैटर पर आता है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स पर आते हैं। तो ऑडिट के भी कुछ 10-12 फिक्स सिनेरियोज हैं, किस तरह से हम ऑडिट करते हैं। रेवेन्यू कैसे वेरीफाई करोगे? कहीं आपको लगा कि रेवेन्यू ओवर स्टेटेड है, तो ओवर स्टेटेड रेवेन्यू को आप कैसे चेक करोगे कि आपको पता चला है? तो क्या क्या चीजें चेक करेंगे हम? तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज जो है ऑडिट का, वो हेल्प करता है, ठीक है। नाउ व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट एएस एंड ऑडिट, सॉरी, इंड एएस एंड ऑडिट, उसका रीजन बहुत ही सिंपल है। उसका रीजन ये है कि ये दोनों ही ऐसे मैटर्स हैं जिसके अंदर यू विल फाइंड दैट 90% कंपनीज इसी के अराउंड आने वाली है। अभी लिस्ट लोग देखेंगे तो लिस्ट में आप देखोगे कि 90% कंपनीज जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए आती है। इनफैक्ट जो आपने स्टार्टिंग में लिखा था जेपी मॉर्गन, यूबीएस, ये सब भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए आती है, तो वो भी इंड एस 109 के ऊपर ज्यादा फोकस करती है। तो इस एंगल से आपको बात समझनी है कि हमें इमीडिएटली प्रैक्टिकल लर्निंग चाहिए इंड एस की। दूसरा, आपको ये चाहिए कि ऑडिट, ऑल्दो हो सकता है आपका मन ना हो ऑडिट फर्म ज्वाइन करने का, लेकिन बैकअप रखना ही पड़ेगा। मैक्सिमम बिग फोर्स जो आती है वो स्टेट ऑडिट प्रोफाइल के लिए आती है, तो बैकअप की तरह उसको भी रखना है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूं। फिर कुछ लोग फाइनेंस के लिए जाना चाहते हैं, फाइनेंस के भी इसी तरह के क्वेश्चन है। तो आई कैन कीप ऑन आस्किंग लॉट एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट यस, ऑब्वियसली वी हैव अ टाइम कंस्ट्रेंट। आगे आने वाले जो सेशंस रहेंगे उसमें मैं दोनों चीजें कवर करूंगा, कंपनीज भी कवर करूंगा, और उसमें उन्होंने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं वो भी मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो बट अच्छी बात यह है कि आप लोग काफी पार्टिसिपेटिव हो क्लास में, और इसी तरह से जितने भी आगे के सेशंस रहे उसमें आप लोग बिल्कुल इसी लेवल का पार्टिसिपेशन अपना आगे रखिएगा, ठीक है। अभी सो फाइनेंस रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। फिर एक पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, व्हाई वी शुड हायर यू, और इस टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म प्लान्स। तो ये कंप्लीटली एक डिफरेंट एंगल के क्वेश्चंस होते हैं।
जो लोग टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, कई बार इन क्वेश्चंस में मुश्किल आती है उन्हें, तो इस एंगल को भी हमको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब आज का जो फाइनल पॉइंट है, उस फाइनल पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि ये मैंने वैसे वीडियो भी बनाया था, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि should we start campus preparation now or should we start after the results, right? इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, आई होप आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, बट उसमें हमने ये बात करी थी कि इसको दो फेजेस में डिवाइड कर लो आप। ये तो एक बहुत ही ऑब्वियस यस है कि यस, तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। प्री रिजल्ट्स जो मैंने अभी आपको इंडेज के नाम दिए हैं, 115, 116, 16, 2, 12 एंड 109, ये कम से कम प्रिपेयर कर लो। कॉर्पोरेट ऑडिट, अगर आपने अभी तक कोई भी ऑडिट नहीं करा है तो ये फाइंड आउट करो कि आपके सर्कल में कोई एक ऐसी फॉर्म है जो आपको एक्सपोजर दे सकती है, तो एटलीस्ट उनके साथ 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जो भी आप टाइम दे सकते हो, उनसे रिक्वेस्ट करो कि आप मेरे को किसी कॉर्पोरेट ऑडिट में इन्वॉल्व कर लो। इसमें आपको हर तरह की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। इंडेस अप्लाई कैसे होते हैं, गोइंग कंसर्न का पॉइंट कैसे होता है, ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज कैसे होती है, ऑडिट स्टार्ट कैसे होता है, हर लाइन आइटम का ऑडिट कैसे होता है, सपोर्टिंग्स किस टाइप की लेते हैं। तो जो आपने थियरी पढ़ी है ऑडिट की, और बिलीव मी, मतलब ये मैं आपको बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ कि वो जो थियरी हमने पढ़ी है उसका और प्रैक्टिकल लाइफ का जो कनेक्शन है वो बहुत कम है। मैं अभी ऑडिट के आपसे कम से कम 10 सवाल पूछ सकता हूँ और मुझे पता है कि उसमें से 2 या 3 आंसर्स ही करेक्ट है, क्योंकि ये हम लोग हर बार क्लासेस में देखते हैं। तो प्रैक्टिकल जिन लोगों को नॉलेज होता है वो फिर भी दे जाते हैं आंसर, लेकिन जिनको थियोरेटिकल आंसर है वो थ्योरी थ्योरी बताते रहते हैं, जो कि इंटरव्यू में काम नहीं आती है। तो कोशिश करो कि अपने आप को, अगर आप किसी इंडेस कंप्लाइंट कंपनी की ऑडिट में इन्वॉल्व कर सकते हो फिर तो। अगर आपको फाइनेंस में जाना है तो वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी समझिए कि वैल्यूएशन क्या क्या होता है, वैल्यूएशन किस टाइप से होता है, डीसीएफ मॉडल क्या होता है, कंपेरेबल मॉडल क्या होता है। ठीक है, अगर आपका मन है कि नहीं हमें तो इनकम टैक्स या जीएसटी में करियर बनाना है, तो इनकम टैक्स और जीएसटी के जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं वो पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, और अगर आपको नहीं मिल रहा हो तो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से पढ़ना है, थोड़ा मटेरियल जो हमारे पास है वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। फिर आईसीआई कैंपस के बारे में, करियर प्लानिंग के बारे में, वो मैं आपको टाइम टू टाइम ग्रुप पर भेजता रहूंगा। ठीक है, तो आप उसको कर सकते हो। रेज्यूमे के फॉर्मेट वी विल शेयर विथ यू, तो रेज्यूमे बिल्ड कर लो आपका। इंट्रोडक्शन के लिए एक वीडियो मैंने ग्रुप पर डाला है, इंट्रोडक्शन अपना प्रिपेयर कर लो। अगर पॉसिबिलिटी हो तो एक मॉक इंटरव्यू दे लो। जब भी आप थोड़े बहुत तैयार हो जाओ तो एक मॉक इंटरव्यू दे लो, तो इससे क्या है, आपका एक बेस बन जाएगा इतनी चीजें करके। और जब पोस्ट रिजल्ट और फाइनेंस का एक न्यूज़पेपर जो इकोनॉमिक टाइम्स या बिजनेस स्टैंडर्ड है, वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और पोस्ट रिजल्ट्स फिर आपके लिए लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। पोस्ट रिजल्ट्स फिर क्या है, आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करो, उसके बाद मॉक इंटरव्यूज दो, कुछ चीजें जो ब्रश अप करनी हो तो ब्रश अप कर लिया। आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज हम लोग 1 हफ्ते 2 हफ्ते में करें, डिफिकल्टी आती है। तो लक की बात रहती है कि कैंपस लेट आए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कैंपस जनरली 30-40 दिन में आ जाता है। फिर वहां से एकदम 2-3-4 दिन तो सेलिब्रेशन में चले जाते हैं, ऑब्वियसली जाना ही चाहिए, इतना बड़ा अचीवमेंट रहता है। तो टाइम फिर कहीं ना कहीं कट शॉर्ट हो जाता है। तो ये सब चीजें करें करें उसमें इंडेक्स के रिमेनिंग टॉपिक्स, ऑडिट के रिमेनिंग टॉपिक्स, कैंपस फॉर्म फिलिंग, सेंटर सिलेक्शन, ऑफ कैंपस एप्लीकेशन, अलग अलग जॉब पोर्टल्स पे अपने रेज्यूमे अपलोड करना, और फिर प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक पीआई, मॉक जीडी, इन सब में आप टाइम इन्वेस्ट अच्छे से कर पाओगे। तो आप प्रिपेयर रहोगे तो ये एक एडवांटेज रहेगा। हम लोगों का जो प्लान है बेसिकली, वो प्लान बहुत ही बेसिक और बहुत ही लॉजिकल प्लान है, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी अनसर्टेन होते हैं रिजल्ट्स को लेके। तो हम लोगों ने एक जो हमारा प्लान लॉन्च किया है, दैट इज यू नीड टू पे आफ्टर रिजल्ट्स, राइट। आप लोग हमारे रिकॉर्डेड सेशंस ले लीजिए, जो अभी लास्ट रिकॉर्डिंग, लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स है, उन लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स को आप लो। उसमें सारी चीजें कवर्ड है, एस इंडेस, ऑडिट। तो पूरा ब्रश अप हो जाएगा आपको कि बेसिकली आपको प्रिपेयर करना क्या है, कौन से क्वेश्चंस प्रिपेयर करने, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उसके अंदर
डिस्कशन, राइट? तो आपको जहां पर टाइम ज्यादा देना है वो प्रिपरेशन आपकी अभी हो जाएगी, ठीक है? मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी 10-15 दिन में आपकी प्रिपरेशन खत्म हो जाए, उसके बाद आपके पास कुछ भी ना हो, क्योंकि असली तैयारी तो आपकी बाद में स्टार्ट होगी। तो यहाँ से आप अपना एक बेस बना लो। रिकॉर्डिंग्स देखो, इसमें केवल रिकॉर्डिंग्स नहीं रहेंगी, इसमें लाइव सेशन भी हमारे रहेंगे, राइट? टाइम टू टाइम वी विल बी डूइंग सम लाइव सेशंस। बट इससे ये जितना बेस है आपका इंडेस का, ऑडिट का, टैक्स का, फाइनेंस का, क्या क्वेश्चंस आते हैं, 200 क्वेश्चंस उसके अंदर डिस्कशन फॉर्म में हमने करे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस। तो 200 क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, और 90% पॉसिबिलिटी ये है कि उन 200 क्वेश्चन में से ही क्वेश्चंस आपके एक्चुअल इंटरव्यू में आने वाले। तो वो एक आपका बिल्डिंग ब्लॉक बन गया। और उसके बाद जब कैंपस रिजल्ट्स आ जाएंगे, फिर कैंपस की तैयारी, उसमें मॉक देना, फिर लाइव क्लासेस में आप वापस से बैठो ताकि आप उन चीजों को रिवाइज कर सको, ऑफ कैंपस अप्लाई करना, फिर आपके लिए लाइफ जो है वो कंपैरेटिवली इजी हो जाएगी। तो अभी रिकॉर्डिंग पे जाओ, जिसमें कुछ 80% रिकॉर्डिंग रहेगी, 10-20% गाइडेंस के लिए लाइव सेशंस रहेंगे। और पोस्ट रिजल्ट्स, जब जब भी रिजल्ट्स आते हैं आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स, दैट टाइम वी बेसिकली चार्ज दी स्टूडेंट, राइट? अभी हम लोग अगर हमारा स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इट इज 999 ओनली रजिस्ट्रेशन अमाउंट नाउ, एंड 3000 वंस यू गेट योर पॉजिटिव रिजल्ट्स, ठीक है? इसमें भी हमने जो स्टूडेंट्स आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, उन स्टूडेंट्स के लिए वी हैव डन 50% डिस्काउंटिंग, राइट? सो आज जितने लोगों ने पार्टिसिपेट करा है उनके लिए इट इज 499, राइट? सो यू हैव टू पे ओनली 499, यू विल गेट द लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स। उसके बेसिस पे आप आपकी प्रिपरेशन से स्टार्ट कर दीजिए। जितना भी मटेरियल एंड एवरीथिंग दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू। और जैसे रिजल्ट्स आते हैं, उस रिजल्ट आने के बाद आप लाइव सेशंस ज्वाइन करें, और लाइव सेशंस में आपका ये सारा रिवीजन भी होगा, कुछ अगर एडिशनल पॉइंट्स होंगे वो भी आ जाएंगे, उसमें कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशंस भी हो जाएंगी, बट एटलीस्ट आपका एक बिल्डिंग ब्लॉक रेडी रहेगा, ठीक है? सो दिस इज द प्लान दैट वी हैव कम अप विद, एंड आई पर्सनली बिलीव कि ये सबसे लॉजिकल है इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स बर्डन ऑल्सो, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स फ्रैंकली रहते हैं हमसे, तो वो बोलते हैं कि सर हम फुल फीस दे देंगे और उसके बाद फिर कभी रिजल्ट हमारा पॉजिटिव नहीं आया तो क्या करें? इस चक्कर में वो तैयारी भी स्टार्ट नहीं करते हैं। तो दैट्स व्हाई वी अंडरस्टूड दिस कंसर्न, एंड वी हैव डिवाइडेड इनटू दिस पार्ट कि लाइक वी आर नॉट चार्जिंग एज सच द फुल फी, वी आर चार्जिंग अ वेरी नॉमिनल रजिस्ट्रेशन अमाउंट, and fee will be charged once you get qualified, whenever you get qualified, right? ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका कोई प्रेशर है कि रिजल्ट आने के बाद, जब भी आपका सक्सेसफुल रिजल्ट आता है उसके बाद, ठीक है? तब तक आप तैयारी करते रहो और इस पर्सपेक्टिव को डेवलप करते रहो कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, किस तरह से पूछा जाता है, ताकि आपको एक डायरेक्शन सेट हो, ठीक है? सो दिस इज व्हाट आवर प्लान इज, एंड यू कैन if you want, yes, you can definitely go for it. I will ask my team. They will contact you. They will send you the details, further details about these things. बेसिकली गूगल ड्राइव के फॉर्म में लेक्चर्स रहते हैं, तो आप जैसे बाकी के लेक्चर्स देखते हो उसी तरह से ये फॉर्म आपको इसी फॉर्मेट में ये चीजें मिल जाएगी, ठीक है? सो अगर आज का सेशन हम समराइज करें तो समरी ये है कि आप लोग जॉब प्रेडिक्टर फॉर्म फिल करिएगा। यू विल गेट द जॉब प्रेडिक्टर फॉर्म, ग्रुप में आ जाएगा वो। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमें किस टाइप के जॉब्स की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, और उन पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंगली हम लोग हमारी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। और वो तैयारी स्टार्ट करने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनके ऊपर आप फोकस करिए। कोशिश ये करिए कि जितनी बार भी हमारे सेशन हो रहे हैं क्लास में, उनको अटेंड करो। उसमें जितनी बार हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करके अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट जनरली इज आस्क्ड इन द इंटरव्यूज, एक्चुअल इंटरव्यूज। और साथ में ये करते जाइए कि अपने स्किल सेट बिल्ड करना है अगर आपको, तो अगर आपने अब तक कोई ऑडिट नहीं करा है तो एक ऑडिट में अपने आप को इन्वॉल्व कर लो। फाइनेंस फील्ड में जाना है अगर आपको, तो वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी, राइट? ऑल्दो मैंने लेक्चर्स में वैल्यूएशन का एक स्पेसिफिक सेशन है जो मैंने कवर किया है। 80% लेक्चर्स उसमें आपको मेरे ही मिलेंगे, राइट? हम लोग सिंगल ट्रेनर फॉर्मेट पे काम करते हैं।
राइट. 80% क्लासेस आई कंडक्ट माई सेल्फ. स्टूडेंट्स की क्वेरीज भी मैं डायरेक्टली ही लेता हूँ. राइट. हमारा मल्टी ट्रेनर मॉडल नहीं है, बिकॉज व्हाट आई बिलीव इज कि स्टूडेंट शुड हैव द कंफर्ट ऑफ स्पीकिंग टू वन पर्सन. तो आपको 80% सेशंस में इंडेस, ऑडिट और फाइनेंस, ये 3 सेशंस सारे मेरे ही कवरेज मिलेंगे. टैक्स के लिए जरूर हम लोग एक्सपर्ट को बोलते हैं, सो जीएसटी एंड इनकम टैक्स. राइट. ये 2 सेशन आपको एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स के मिलेंगे. तो आपको अगर फाइनेंस के अंदर करियर बनाना है तो वैल्यूएशन अच्छे से समझिएगा, कैसे वैल्यूएशन होता है और क्या क्या मैथोडोलॉजीज होती है, और उसमें खासतौर पर डीसीएफ मॉडल. अगर उस साइड में अगर आपको जाना है, आईबी में जाना है या इक्विटी रिसर्च में जाना है. लिंक्डइन पे अपने आप को काफी एक्टिवेट कर लो आप लोग. यू शुड कनेक्ट विथ मी ऑल्सो. अगर आप नहीं कनेक्टेड हो तो कनेक्ट हो जाओ. देखो कौन कौन से लोग हैं, जो सर्च करके देखो. अगर आपको आईबी में जाना है तो आईबी में कौन लोग हैं जो आपके पहचान के हैं अभी, कौन से ऐसे लोग हैं जो मेरे पहचान के हैं. ठीक है, उनसे अभी से बात करना स्टार्ट कर दो कि लाइक थोड़ा थोड़ा मतलब डिस्कशन स्टार्ट कर दो उनके साथ. कुछ तरह से किसी भी तरीके से कनेक्ट बनाना स्टार्ट करो. तो इन अ वे, इफ वी वांट टू गेट इनटू नॉन ट्रेडिशनल फील्ड लाइक आईबी और मैनेजमेंट कंसल्टिंग, दिस इज द ओनली वे. ठीक है, तो इस तरह से आप एक स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. यस, एनीथिंग दैट you have, if you have any question, yes, I will be happy to answer it. Will share the list of the topics, right? मैं आपके साथ ये टॉपिक्स की जो लिस्ट है ये डेफिनेटली शेयर कर दूंगा. ठीक है, तो आप उनको देख सकते हो. ठीक है. All right, so thank you very much for your active participation and patience listening. I wish you all the best for your results, and I hope that you will utilize your time in the best possible manner. Thank you very much once again. Bye bye.